All right. So yesterday we have started with the problem types of type 1 problems on Fourier integral representation, means this particular part. Now by this time I hope you could know that what is the difference between Fourier integral representation, then Fourier transform and inverse Fourier transform. If it is simply a question to find out the Fourier transform, आपको क्या find out करना है? Either f of lambda और fc of lambda, ठीक है, और fs of lambda means Fourier cosine transform या Fourier sine transform. If it is given Fourier integral representation, then आपको f of x is equal to integral form इसका identify करना है, right? And when I used to find out the inverse Fourier transform IFT, in that case आपको f of x find out करना है what it is. So इन तीन types के problems के साथ हम deal कर रहे हैं. Along with that, we are using all the prerequisites corresponding to even and odd function, interval given, then DUIS and all the related integration formulas जो हमने already revise किए थे. Now proceeding in similar way, few of the problems today also we'll discuss, which are based on the Fourier integral representation and later on inverse Fourier transform. So this is your type 2 in the PPT, this is your type 1 in the PPT, and this is your type 3 in the PPT. So मैंने sequence थोड़ा सा change किया था problems practice के लिए. So it will not be very difficult once you understand the difference. Type matter ही नहीं करता in that case, ठीक है? Okay, coming to the question 2, आपको क्या करना है? Fourier integral representation find out करना है किसका? f of x का, right? Means f of x को आपको integration के form में लेके आना है. अब ये function split interval में दे के रखा है. किसका यूज करना है हमको? Fourier transform का यूज करना है. Moreover, you have to show both of these results. अब ये रिजल्ट शो करने के लिए हमें पहले f of x को इंटीग्रल फॉर्म में तो लाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट सेक वी विल बी यूजिंग अवर फर्दर डिटेल्स. सो केयरफुली सी दिस. अब फंक्शन जो दिया है ना, मैं ये जर्नल पे सॉल्व करके बताती हूँ आपको, सो दैट इट विल बी बिट इजी टू अंडरस्टैंड. दिस योर फर्स्ट प्रॉब्लम. f of x आपको दे के रखा है, इट इज 1. ओके, this is 1 for mod x less than क्या था वो 1. okay, and this is equal to 0 for mod x greater than 1. now let me explain you first of all the real line. ये हमारा है towards infinity, this is towards minus infinity. तो आपका फंक्शन डिफाइंड है -1 to 1 के लिए, ठीक है? सो इस इंटरवल के लिए फंक्शन डिफाइंड है, एंड व्हाट इज दिस? f of x is equal to it's 1. इस इंटरवल के लिए हमारे पास फंक्शन है 0. इस इंटरवल के लिए हमारे पास फंक्शन है 0. सो entirely for this interval we are not going to calculate. For this interval we are not going to calculate. We are having 3 intervals here: minus infinity less than x less than -1, second है -1 less than x less than 1, and third है 1 is less than x less than infinity. तो जो मैं बोल रही हूँ ये इंटरवल हमारी नहीं आएगी, ये भी इंटरवल के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट फॉर दिस इंटरवल व्हिच इज दिस मिडल इंटरवल, एंड द इंटरवल इज ऑफ द टाइप -a to a. and whenever we are having interval -a to a, the integration of any function f of x dx has 3 different meanings. क्या मीनिंग है? ये होता है twice of integration 0 to a f of x dx. कब? जब f of x आपका even है तो, right? then this is equal to 0. कब? f of x अगर odd है तो, right? and this is equal to integration -a to a f of x dx. ये कब होगा? Neither when this is possible. Exactly. f of x is neither even nor odd. के केस में. So based on that हमें हमारी strategy of solving decide करनी है. Now my interval is -1 to 1. ये initially -infinity to infinity है. -infinity less than x less than infinity है, जो
इन 3 सब इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका स्प्लिट फॉर्म में डिफाइंड है। एंड इन 3 सब इंटरवल्स को भी हम अगर केयरफुली जज करें तो मिडिल इंटरवल के लिए ये डिफाइंड है, बाकी इंटरवल के लिए 0 है, तो आंसर 0 ही आएगा। And now with the sound understanding of this particular part, we can proceed for the solution. So मुझे करना क्या है, f of x is equal to 1 दे के रखा है हमें for mod x less than 1 and this is 0 for mod x greater than 1. So what I will do, I will write down my function in this way. This is 1, correct? For minus 1 less than x less than 0 and this is again 1 for 0 less than x less than 1. आप ऐसे करो या फिर और एक तरीका होगा, f of x is equal to 1 for minus 1 less than x less than 1. ऐसे करो, one and the same, right? And now to define this, either this format or this format, मुझे करना क्या है, f of minus x के साथ स्टार्ट करना है. So if I replace x by minus x, यहाँ पर क्या चेंज होगा, ये 1 ही रहेगा क्योंकि कोई भी x यहाँ पर है नहीं, right? And this is equal to f of x only over the interval minus 1 less than x less than 1. So from this, what conclusion I can have? We have started with f of minus x, we arrived at f of x, so f of x is an even function. Am I right? So minus a to a type वाले इंटरवल में फंक्शन हमारा इवन है. Let us get back to the PPT. So हमने यहाँ पर यही प्रूव किया है. It's an even function over the interval minus 1 to 1 and expanded interval minus infinity to infinity consider की, तब भी ये हमारा इवन फंक्शन रहेगा. कौन सा दिया गया फंक्शन आपका, ये वाला, राइट? सो अब अगर इस इंटरवल पर ये फंक्शन इवन है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर फंक्शन इवन है तो हमारे पास एफ सी ऑफ लैम्बडा फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity f of u into cos of lambda u into du, राइट? लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपके इंटरवल माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इंफिनिटी है. तो बेसिकली हमारी इंटरवल भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी थी, जहां पर हमने ड्रॉप डाउन करके माइनस 1 to 1 पर इसे लेके आए हैं. सो नाउ फॉर दिस इंटरवल अगर ये एफ सी ऑफ लैम्बडा हो सकता है तो माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 1 के लिए हमारा एफ सी ऑफ लैम्बडा क्या होगा इस प्रॉब्लम के लिए? दिस विल बी इक्वल टू 0 to 1 एफ ऑफ यू क्या है हमारा 1 यहाँ पर cos of lambda u du. Am I right? या फिर आप यहाँ से ये जो हमने डिफाइन किया है यहाँ से अगर चेक करना चाहते हो तो ये हम ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं अगर हमारा फंक्शन इवन है तो. लेकिन हमारे फॉर्मूला में ये 2 नहीं है. क्यों नहीं है? मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये 2 जो है, ये जो कॉमन वाली टर्म है ना 2/π, उसमें मर्ज हो जाता है. या फिर सिर्फ अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो वहां पर ये कांस्टेंट वाली टर्म है 1/2π, वहां पर मर्ज हो जाता है. सो ये 2 आपने यहाँ पर लिखा या नहीं लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता. हाँ, आंसर जरूर आपको डिफरेंट दिखेगा, बट दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. सो ये बिल्कुल याद रखना. सो माइनस 1 to 1 के लिए आप इस इवन फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो. दिस इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 into cos of lambda u du. So now simplify 2 aside, integration of cos is sin of lambda u upon u. Upon u आएगा क्या? lambda आएगा. Varying from 0 to 1. Substitute the upper and lower limit. So मुझे ये मिलेगा sin of lambda upon lambda minus sin of 0, that is 0. तो ये हो गया हमारा f c of lambda. Am I right? तो ये सिर्फ थोड़ी सी एम्बिग्यूटी हमारे पास हर टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त होगी. गेटिंग माय? ओके. सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के लिए ये जो फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन हम पुट अप करेंगे वो इस वे में होगा. 2/π इंटीग्रेशन 0 to infinity f c of lambda cos of lambda x into d lambda.
तो ये फॉर्मूला अगर हमें कंटिन्यू करना है तो हमारे एफ सी ऑफ लैम्बडा में ये जो 2 है ये नहीं आएगा। एनी हाउ मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अगर आप प्रॉब्लम देख रहे हो तो फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है, राइट। एंड मैं फिर से फॉर्मूला की तरफ जाती हूँ जो हमने इनिशियली पुटअप किए थे। हमारी इंटरवल कौन सी है, सी दिस, -∞ to ∞। फंक्शन आपका हो गया है इवन यहाँ पर, राइट। एंड हेंस एफ सी ऑफ लैम्बडा का ये फॉर्मूला है एंड एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ये है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, सो विल स्टिक टू दैट। तो हम यहाँ पर वो 2 यूज नहीं करते, तो ये 2 मैं यहाँ से हटा देती हूँ। क्यों हटा रही हूँ समझ में आ गया सबको। सो माय फाइनल आंसर इज साइन ऑफ लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। तो ये मेरा एफ सी ऑफ लैम्बडा है। सो अब इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, देयरफॉर फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन FIR क्या होगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to infinity एफ सी ऑफ लैम्बडा इंटू साइन ऑफ लैम्बडा एक्स इंटू डी लैम्बडा। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मुझे ये साइन ऑफ लैम्बडा अपॉन लैम्बडा पुटअप करना है। सो पुटअप दैट, दिस इज 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to, मेरा कुछ गलत हो गया है क्या, किसी को आइडेंटिफाई करना है, कर सकता है कोई। Yes, anyone? Ma'am, 0 to 1 limits. Yes, or cos of lambda x. Yes, cos of lambda x and यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1 लिख सकते हैं। ओके, एक मिनट में प्रूफ क्या करना है देखते हैं हम। ये 0 to infinity के लिए प्रूफ कर रहे हैं। ओके, विल कीप एज इट इज। हमने यहाँ पर इसे 0 to infinity भी रखा, तो ये हम स्प्लिट कर सकते हैं 0 to 1 प्लस 1 to infinity। तो यहाँ पर ये 0 आएगा एंड दिस इज योर cos ऑफ लैम्बडा यू डी। तो इसका इवैल्यूएशन हो रहा है, तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटी हम रखते हैं क्योंकि इवैल्यूएट फर्दर रिजल्ट के लिए हमें वो चाहिए। सिर्फ हमें एफसी ऑफ वन एंड द सेम ना, या इट इज वन एंड द सेम, बट जो ये फर्दर रिजल्ट आपको इवैल्यूएट करना है ना, इट इंक्लूड्स इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई वी विल कीप। यस, ओके। एंड अगर हमें सिर्फ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछा जाता तो हम सिर्फ इतना पुटअप करके ये लिख देते, बट हमें FIR पूछा गया है तो हमें गिवन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर इन्फिनिटी पुटअप करना होगा। ओके मैम, इट इज टोटली डिपेंड ऑन हाउ योर प्रॉब्लम गोज। कांस्टेंट कहाँ पर पुटअप करना है, लिमिट्स आपको कौन सी लेनी है, अगर फर्दर हेंस इवैल्यूएट वाला पैटर्न है तो क्या करना है, ये पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें समझ में आ जाएगा। राइट, तो ये हो गया आपका फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। सो दैट्स एक्चुअली हाफ ऑफ आवर आंसर। हमारा फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन हमें मिल गया। अब आपको फर्दर इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन 0 to infinity साइन लैम्बडा कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स इंटू अपॉन लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा, इसकी वैल्यू निकालनी है। बट आपको क्या मिला है, ये इक्वेशन 1 मिला है। So what this equation 1 represents, the exact integral जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। So I will write down this equation 1 as integration 0 to infinity sin of lambda cos of lambda x upon lambda into d lambda. So this is equal to pi by 2 into f of x. f of x क्या है आपका, it's 1 for mod x less than 1 and this is 0 for mod x greater than 1. सो ये हो गया आपका इवैल्यूएशन। अब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुटअप करने से हमें इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन मिल सकता है, राइट। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो मिला है आपको पाई बाय 2 इंटू 1 फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 एंड 0 फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। तो x पर डिपेंड करता है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो। ऑलराइट, तो ये जनरल वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन की। सेकंड जो डिडक्शन हमें फाइंड आउट करना है वो है इंटीग्रेशन 0 to infinity साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा।
मीन्स व्हाट, अगर आप ये दोनों भी इंटीग्रेशन देख रहे हो तो यहाँ पर कॉस ऑफ लैम्डा एक्स की टर्म नहीं है, अब्सेंट है। अब्सेंट है मीन्स व्हाट, ये साइन ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा हमें चाहिए, कॉस ऑफ लैम्डा एक्स अब्सेंट है मीन्स उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, लैम्डा 0। ये अगर लैम्डा 0 होने पर नहीं, x 0 होने पर ना, x 0 x 0 पर इक्वल लैम्डा तो टू हमारा लैम्डा होने पर। नहीं नहीं नहीं, इक्वल टू लैम्डा होने पर भी नहीं, लैम्डा x आपका is equal to इंटीग्रेशन 0 के हो जाएगा। अंडर का, हाँ, cos ऑफ लैम्डा एक्स आपका 1 आना चाहिए, दैट मीन्स लैम्डा एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 आना चाहिए। cos इनवर्स ऑफ 1 कब होता है, 0 पर। सो लैम्डा इंटू एक्स आपका 0 आना चाहिए, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। लैम्डा पर तो हमारा रेस्ट्रिक्शन सही नहीं है, लैम्डा 0 से इन्फिनिटी तक वैरी हो रहा है, ये इंटीग्रेशन के अंडर का वेरिएबल है। सो रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पर है हमारे पास, x पर रेस्ट्रिक्शंस है, लैम्डा पर तो रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। x अगर -1 से ग्रेटर है एंड 1 से लेस है तो हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लैम्डा पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो ये इंटीग्रेशन तभी मिलेगा जब x इज इक्वल टू 0 है तो, करेक्ट। cos ऑफ लैम्डा x की वैल्यू 0 तब 1 तभी होगी जब x इज इक्वल टू 0 है, एल्स इट इज नॉट पॉसिबल। x अगर पाई है तो ये cos ऑफ लैम्डा पाई आ जाएगा, राइट, मीन्स -1 रेस टू लैम्डा के फॉर्म में आ जाएगा, ये लैम्डा पर डिपेंड करेगा फर्दर, लेकिन 1 वैल्यू कहीं पर भी नहीं आएगी। cos ऑफ लैम्डा 2 पाई, यहाँ पर वैल्यू 1 आ सकती है, cos ऑफ लैम्डा पाई पर ये -1 रेस टू लैम्डा के फॉर्म में जाएगी। सो ये डिपेंड करेगा लैम्डा पर जो 0 से इन्फिनिटी तक वैरी हो रहा है, एंड उस पर इस टाइप के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास नहीं है। सो x इक्वल टू 0 के लिए हमें ये इंटीग्रल मिल सकता है, राइट। सो वी विल पुट अप दैट, देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes integration 0 to infinity sine of lambda upon lambda into cos of lambda is equal to 1, cos of lambda x is equal to 1 for x is equal to 0, एंड यही वैल्यू हम राइट हैंड साइड पर भी पुटअप करते हैं। सो राइट हैंड साइड पर क्या है, x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर आएगा, इस इंटरवल में आएगा, इज दैट राइट, या x इज इक्वल टू 0 इस इंटरवल में आएगा, लेस देन 1। लेस लेस देन देन 1 1 में, यस, लेस देन 1 में आएगा तो उसके लिए आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, कांस्टेंट 1। राइट। देयरफॉर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, π/2, राइट। सो हमारा डिडक्शन यहाँ पर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू π/2। तो हमें हमारे सेकंड इंटीग्रेशन की भी वैल्यू मिल गई, दिस इज इक्वल टू π/2, करेक्ट। ये सेकंड जो रिजल्ट है ना, एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। लेट मी शो यू, हमने प्री रिक्विजिट्स में भी ये रिजल्ट डिस्कस किया है, हमने जस्ट नोट डाउन किया था, सी दिस, ये वाला रिजल्ट। तो हम ये रिजल्ट डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं, ओके। लेट अस कंटिन्यू सॉल्विंग फर्दर। अब आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा सबको, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। Okay. See, variety of aspects we are using simultaneously in a single problem. So be aware of the statement of the problem. अच्छे से रीड करो तभी जाके हमें प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। Now check out the third problem. Find the Fourier transform of, इस फंक्शन का Fourier transform find out करना है। The first task is very easy. Second, hence show that this integration is equal to -π/2, मीन्स आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू प्रूव करनी है कि ये -π/2 है, लेकिन f ऑफ x से ये इंटीग्रेशन कब मिलेगा, जब आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करके फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में पुटअप करोगे तब। मीन्स सेम प्रोसेस करनी है कि फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आपको फाइंड आउट करना है एंड उसमें x की कुछ तो भी वैल्यू पुटअप करनी है, आइदर फ्रॉम दिस इंटरवल और फ्रॉम दिस इंटरवल, करेक्ट। सेम प्रॉब्लम है जैसे इक्वेशन प्रॉब्लम 2 था। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? यस मैम।
यस, अगेन यहाँ पर -2 to 2 इंटरवल दी है, मीन्स ये -a to a वाले पैटर्न में है, तो मैं यहाँ पर प्रूव कर सकती हूँ कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, देन आई कैन प्रोसीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम इसके साथ चल सकते हैं। नाउ इंटरवल इज नो मोर -∞ to ∞। तो यहाँ पर भी हम 2 और यहाँ पर 0 to 2 लिख सकते हैं, 0 to ∞ भी पुट अप कर सकते हैं। आई कैन एक्सटेंड दिस इंटरवल दो इट इज नॉट गिवन। आइदर मैं 2 के साथ ही -2 to 2 के साथ ही कंटिन्यू कर सकती हूँ, या फिर मैं इसे और एक जोड़ सकती हूँ। यहाँ पर दिस इज 0 फॉर -∞ लेस देन x लेस देन -2, right? And this is 0 for 2 less than x less than infinity. So I converted my function defined on -∞ to infinity in this way, no matter at all. So ये infinity यहाँ पर रहा तो भी चलेगा, अगर आपने यहाँ पर 2 लिखा तो भी चलेगा, no issues. ठीक है, समझ आई बात? Okay, so process is similar. Fourier transform find out करो and integral representation में put up करके x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये आपका रिजल्ट ऑब्टेन करने की कोशिश करो, राइट? ओके, लेट अस गो फॉर इट। तो मैं ये प्रॉब्लम यहीं पर समझाती हूँ, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आता है या नहीं। f ऑफ -x के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम। दिस इज 1 -1 फॉर दीज 2 इंटरवल्स एंड इट इज क्लेम्ड हियर दैट इट इज ऑड फंक्शन। ये शायद आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। गेट बैक टू द जर्नल वंस अगेन एंड लेट मी कंटिन्यू विद दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम। f ऑफ x आपको दिया है 1 -1 फॉर -2 लेस देन x लेस देन 0 and this is 0 less than x less than or equal to 2. Find f of lambda and hence evaluate. Integration 0 to infinity cos of 2x minus 1 sin of 2x upon x into dx is equal to -500. Okay, so let us try to find out. अब ये फंक्शन मैं यहाँ पर ले रही हूँ, मुझे भी ये प्रूव करना है कि और फंक्शन है। ये शायद आपको पता होगा, आपने 11th-12th में ये किया भी होगा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, जस्ट किसी कोई भूल गया हो तो वी आर ब्रशिंग इट अप। ये मेरी इंटरवल है। नाउ इस टाइप के स्प्लिट इंटरवल के लिए इवन या ऑड कैसे प्रूव करते हैं ये मैं बता रही हूँ। आई विल स्टार्ट विद f ऑफ -x, ठीक है? तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर x को किससे रिप्लेस करना है? -x से। सो सिंपल। सो यहाँ पर कोई x है नहीं तो 1 ही रहेगा। -2 लेस देन और इक्वल टू -x लेस देन 0, यहाँ पर -1 ही रहेगा। दिस इज 0 लेस देन x लेस देन -x लेस देन और इक्वल टू 2। गॉट माय पॉइंट? ओके, अब यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं x को -x से। बेसिकली ये जो इंटरवल है -2 to 0, ये है आपका -2 एंड ये है 0, ये है 2। तो -2 to 0 के लिए x बेसिकली आपका कैसा है? निगेटिव है। ऑल ऑफ यू एग्री? यस मैम। राइट। और जैसे मैं x को -x के साथ रिप्लेस करती हूँ तो x कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव। एग्री? आई रिपीट वंस अगेन, -2 to 0 के लिए, इस इंटरवल के लिए आपकी हर वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है। Am I right? तो -2 to 0 ये इंटरवल निगेटिव इंटरवल हो गई। एंड x अगर निगेटिव इंटरवल में लाई करता है तो वो खुद निगेटिव है। यस यस। सो अगर मैं x को -x से अब रिप्लेस कर रही हूँ तो x तो पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ दिस इज पॉजिटिव। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। या अब पॉजिटिव नंबर आपका निगेटिव इंटरवल में लाई कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स ये इंटरवल आपकी इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर इंटरवल किसकी वजह से हो रही है? x को -x से रिप्लेस करने की वजह से हो रही है। सिमिलरली 0 to 2 इस इंटरवल पर सारे नंबर आपके कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो बेसिकली 0 to 2 इंटरवल आपकी पॉजिटिव इंटरवल हो गई।
और अगर कोई भी x यहाँ पर अगर अप्लाई करता है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं x को -x से रिप्लेस कर देती हूँ, -x तो निगेटिव हो जाएगा। अब ये नंबर आपका निगेटिव है एंड निगेटिव नंबर लाई कर रहा है पॉजिटिव इंटरवल में, तो ये दोनों भी इंटरवल्स इम्प्रॉपर इंटरवल्स हो गई है and I cannot proceed properly here further. So what I'm going to do, मैं इन इंटरवल्स को प्रॉपर बनाने के लिए इन दोनों भी इंटरवल्स को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। तो व्हाट आई विल गेट, लेट अस चेक आउट। ये 1 एज इट इज रहेगा, माइनस साइन। यहाँ पर फंक्शन को हम कुछ नहीं कर रहे, हम इंटरवल्स को प्रॉपर बना रहे हैं जो इंटरवल्स इम्प्रॉपर है। माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 2 एंड जैसे ही मैं इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो नाउ 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो गया 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, राइट। अब चेक करते हैं, अब x आपका पॉजिटिव है, इंटरवल भी पॉजिटिव आ गई। अब x आपका निगेटिव है, इंटरवल आपकी निगेटिव आ गई, राइट। सो अब चेक करते हैं 0 to 2 पॉजिटिव इंटरवल के लिए बेसिकली आपके पास -1 था एंड यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव इंटरवल के लिए 1, तो ये हो गया f of x 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए। सो पॉजिटिव इंटरवल के लिए हमारे पास आ गया -f of x। अब बेसिकली निगेटिव इंटरवल जो है -2 to 0 के लिए आपके पास था 1, लेकिन हमने जैसे सिंप्लीफाई किया है -1 to 0 के लिए आपके पास आ गया -1, तो ये भी -f of x के फॉर्म में है फॉर -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0। तो दोनों भी इंटरवल्स के लिए आपको क्या मिला है, -f of x मिला है। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, f of -x के साथ स्टार्ट किया था एंड हाउ वी अराइव्ड एट एंटायरली -f of x फॉर -2 लेस देन x लेस देन 2। तो फंक्शन कैसे हो गया हमारा, f of x इज एन ऑड फंक्शन, करेक्ट। अब ये चीज ना बहुत सारे फंक्शंस को ट्राई करके देख सकते हो, मैं यहाँ पर एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। एंड अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, एक बार खुद प्रैक्टिस करके देख लो। f of x इज इक्वल टू cos x फॉर -pi लेस देन x लेस देन 0 फॉर 0 लेस देन x लेस देन pi एंड दिस इज माइनस ऑफ cos x। अगर यही मैं रिवर्स करती हूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये भी देखो। माइनस cos of x for -pi less than x less than 0 and this is for cos of x for 0 less than x less than pi। अब हमारा जो फंक्शन था वो कांस्टेंट था, यहाँ पर आप कुछ भी फंक्शन लेके देख सकते हो या कांस्टेंट पुटअप कर सकते हो। हमारे पास था 1 एंड -1 ओवर हियर, तो हम ये वाला प्रॉब्लम करके देखते हैं। यहाँ पर -1 यहाँ पर +1, सेम इंटरवल रखो, चेक करो कि ये इसके लिए ये क्या आता है, ठीक है। कांस्टेंट के लिए हो गया, यहाँ पर 1 की जगह कोई भी वैल्यू लो, 200 लो, 1 लाख लो, 5 लो, 3 लो, 2 लो, एनीथिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर भी फंक्शन जो आप ले रहे हो ना, सेम फंक्शन सिर्फ अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे अगर आपने कर दिया तो इसका इवन एंड ऑड फंक्शन के कंटेक्स्ट में क्या रिजल्ट आता है ये आपको चेक करना है। सो आई गेस 3 प्रॉब्लम्स आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दिस, सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, चेक इट आउट। हमारे इस प्रॉब्लम के लिए तो हमें ये फंक्शन ऑड मिला है, तो ऑड फंक्शन के लिए हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सॉरी, ये फंक्शन ऑड मिला है हमें। सो अब रिजल्ट क्या मिलेगा, f of x इज इक्वल टू 2/pi इंटीग्रेशन 0 to infinity fc of lambda। कहाँ पर गया ये, मैम fs पाहिजे ना, fs of lambda। कहाँ पे गया, हाँ वही मैं, हाँ। तो हमारे इंटरवल में ये ऑड फंक्शन आ गया है, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, आई गेट बैक टू दैट रिजल्ट टेबल वंस अगेन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।
ऑड फंक्शन आ गया, कोई भी इंटरवल -2 to 2 या -∞ to ∞, fs ऑफ लैम्बडा आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज ट्रू, जस्ट यू टोल्ड मी, एंड इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन यूज करना है इस वे। ओनली द डिफरेंस इज दैट हमारे प्रॉब्लम में -2 to 2 है, उसे हम -∞ to ∞ पर एक्सटेंड कर सकते हैं टू शो द गिवन रिजल्ट, या फिर हमारे रिजल्ट में वहां पर 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यस, यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम स्टार्ट करते हैं उसी सेंस में। नाउ दिस इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, हमें एफएस ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ एफ ऑफ यू साइन ऑफ लैम्डा यू इनटू डी यू, राइट। एफ ऑफ यू क्या है, 0 to ∞ के लिए या 0 to 2 के लिए, ये वाली इंटरवल, ये है -1, सो इसलिए हमने यहाँ पर -1 लिया। नाउ इट इज एग्जैक्टली सिमिलर जो 0 to ∞ या 0 to 2 के लिए लाई करता है। -∞ to 0 के लिए या -2 to 0 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो हम नहीं ले रहे, प्लीज रिकॉग्नाइज दिस हियर, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज द इनिशियल फॉर्मूला वी नोटेड फॉर इंटीग्रेशन -a to a f of x dx फ्रॉम 2 into 0 to ∞ f of x dx, ये जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पर ही हम चल रहे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन ये यहाँ पर और फंक्शन है इसलिए हमारे पास fs ऑफ लैम्डा आ जाएगा। कमिंग टू द इवैल्यूएशन, -1 तो बाहर ले सकते हैं, द कांस्टेंट टर्म, साइन का इंटीग्रेशन -cos लैम्डा यू अपॉन लैम्डा वेरीज फ्रॉम 0 to 2, 0 to ∞ ले भी लिया है हमने तो वो ड्रॉप डाउन होकर 0 to 2 आएगा, क्योंकि 2 to ∞ के लिए फंक्शन तो 0 है, डिफाइंड ही नहीं है तो 0 कंसिडर कर सकते हैं, okay। So now put up upper and lower limit, so minus sign as it is, this is cos of 2 lambda upon lambda minus, अब ये लोअर लिमिट का माइनस साइन है, cos of 0 upon lambda, लेकिन ये माइनस साइन एडिशनल है जो इसके साथ 1 के प्लस हो जाएगा, so cos of 2 lambda upon lambda minus 1 upon lambda, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, और ये है हमारा fs ऑफ लैम्डा। सो fs ऑफ लैम्डा हमें लैम्डा एंटायरली लैम्डा के फॉर्म में आ गया, यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू u की वैल्यू नहीं बची है, सो ये हमारा fs ऑफ लैम्डा है। अब इसका यूज करके हमें ये रिजल्ट शो करना है, लेकिन ये शो करने के लिए हमें फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पहले लिखना होगा। तो हमारे प्रॉब्लम के लिए जहां पर हमें फंक्शन ऑड मिला है, हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें लिखना क्या है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म या f of x का रिप्रेजेंटेशन, जो कि है ये 2/π इंटीग्रेशन 0 to ∞ fs of lambda sin of lambda x into d lambda, राइट। fx तो आपको पता है कि ये फंक्शन है एंटायरली, एंड राइट हैंड साइड इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अब कंपेयर करो कि आपको प्रूव क्या करना है, दिस इज cos of 2 lambda minus 1 into sin of 2 lambda upon lambda into d lambda। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बहुत बार ये x दिया जाएगा, राइट, प्लीज रिकॉग्नाइज दिस। ये पूरा चैप्टर, दो फॉर्मूलेज आर लिटिल लेस, लेकिन ये पूरा चैप्टर इस एम्बिग्यूटी की वजह से शायद डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये सारी चीजें अगर समझ रहे हो आप तो बहुत ही इजी है प्रॉब्लम सॉल्व करना। नाउ जस्ट इमेजिन एवरीवेयर लैम्डा, तो हमें प्रूव क्या करना है, cos of 2 लैम्डा है, यहाँ पर -1 है, लैम्डा है, साइन ऑफ लैम्डा x है, तो ये x की जगह पर 2 आना चाहिए, एंड x की जगह पर 2 कब आएगा, 2 कहाँ से आएगा, इस इंटरवल से आएगा जो इनिशियली हमारे f of x के लिए डिफाइंड है, राइट, इनटू d लैम्डा एज इट इज। सो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करो तो हमें राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली सेम इंटीग्रल मिल जाएगा जिसका हमें इवैल्यूएशन में यूज करना है। सो ये इंटीग्रेशन तो मिल गया, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड से, मीन्स यहाँ से। अब यहाँ पर 2 कहाँ पर आ रहा है, इस इंटरवल में तो 2 नहीं है, नेगेटिव इंटरवल में तो 2 नहीं है, पॉजिटिव इंटरवल में 2 है और वो इंक्लूडेड है, तो इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेनी होगी। सो इट्स -1 इज इक्वल टू 2/π इंटीग्रेशन 0 to ∞ दिस एंटायर टर्म,
अब हमें ये 2/π भी नहीं चाहिए, तो ये हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एंड साइड स्विच कर देते हैं. सो इंटीग्रेशन 0 to infinity cos of 2 lambda minus 1/λ into sin of 2 lambda d lambda is equal to -π/2. तो ये हो गया हमारा इवैल्यूएशन. गॉट द पॉइंट एवरीवन? कहाँ पर डाउट है तो पूछो प्लीज. Anybody? Any doubt anywhere? Shall I proceed further? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So अब दो टाइप हमने यहाँ पर कंप्लीट किए. फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया, उसमें हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, एंड अगर कुछ डिड्यूस करने के लिए बोला है तो वो करना है. अब इन दो प्रॉब्लम पर बेस्ट टाइप पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर जर्नल पर सॉल्व करते हैं. I'll give you third problem here. Write down and solve along with me. Show that Fourier transform of f of x is equal to e raised to power minus mod of x is 2/1 plus lambda square. एक्चुअली शायद ये प्रॉब्लम ना अनसॉल्व के फॉर्म में आपके प्रैक्टिस के लिए पीपीटी में इंक्लूड किया गया है. देखिए डाउट शायद ये होगा वहां पर. यस मैम, होमवर्क क्वेश्चन था मैम कल का. ओके, किया क्या ये? यस मैम, ट्राई किया था मैम. तो आ गया ये आंसर? ओके चलो मैम सबसे 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर आ गया था मैम, बट 2 मिसिंग था मैम. मैंने मैम उससे किया है मैम, वो इवन एंड ऑड फंक्शन डेफिनेशन में मैम e to the power minus x cos lambda x, उससे मैंने 1/, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 निकाला, इनका रेंज 0 to infinity और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैम, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी करना था, तो वो आंसर आ गया मैम. करेक्ट. सो उसी वे में करना था हमें. लेकिन मुझे ये बताओ कि ये e raised to power माइनस ऑफ mod x है, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? इवन है मैम, क्योंकि वो इफेक्ट नहीं करता ना. सबको समझ में आ रहा है ये इवन फंक्शन है, या मैं प्रूव करके बताऊं? क्योंकि अगर ये आपका इवन फंक्शन है, ये आपने प्रूव कर लिया, तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एनीबडी? ओके, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर सेक्शन का, और ये अगर समझ में आ गया आपको तो बाकी प्रॉब्लम इस टाइप की समझ में आ जाएंगे. सो मैं सिर्फ f ऑफ x को स्प्लिट कर लेती हूँ पहले. दिस इज, क्योंकि मॉड है इसलिए मैं स्प्लिट कर रही हूँ. दिस इज e raised to power माइनस ऑफ, ओके मैं इंटरवल को ऐसे लिख देती हूँ, माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 0 एंड 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी. तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए मीन्स x अगर आपका निगेटिव है तो मॉड x आपको क्या देगा? माइनस ऑफ x. एम आई राइट? एंड अगर आपका x पॉजिटिव है तो मॉड x आपको क्या देगा? सिर्फ x. तो आपका जो f ऑफ x है ना, वो एक्चुअली ये है e raised to power x for minus infinity less than x less than 0, and this is e raised to power minus x for 0 less than x less than infinity. तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आप f ऑफ माइनस एक्स के साथ, क्योंकि f ऑफ x अगर आपका ये है तो इसे मुझे प्रूव करना है इवन है या ऑड है, तो मैं ऑब्वियसली स्टार्ट करूंगी f ऑफ माइनस एक्स के साथ. रिप्लेस एवरी x बाय माइनस एक्स, सो e raised to power माइनस ऑफ x, एंड यहाँ पर e raised to power माइनस ऑफ माइनस एक्स. इंटरवल में भी माइनस इन्फिनिटी लेस देन माइनस एक्स लेस देन 0, एंड यहाँ पर 0 लेस देन x लेस देन माइनस एक्स लेस देन इन्फिनिटी. तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटेजी जाएगी. माइनस इन्फिनिटी टू 0 आपकी निगेटिव इंटरवल है, तो x जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ऑब्वियसली निगेटिव होगा ओरिजिनली, लेकिन x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर ये माइनस एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर लाई कर रहा है निगेटिव इंटरवल पर, सो ये इम्प्रॉपर इंटरवल है.
सिमिलरली हियर 0 टू इंफिनिटी बेसिकली पॉजिटिव इंटरवल है, तो इस इंटरवल में लाई करने वाला हर एक एक्स खुद पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड नेगेटिव नंबर लाइंग इन पॉजिटिव इंटरवल इट इज ऑल्सो इम्प्रॉपर। सो इसे प्रॉपर बनाने के लिए इंटरवल को सिर्फ हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट्स e raised to power minus x, दिस इज इन्फिनिटी ग्रेटर दैन x greater than 0, and यहाँ पर e raised to power minus minus plus x, this is 0 greater than x greater than minus infinity। अब चेक करते हैं कि क्या मिलता है। 0 टू इंफिनिटी के लिए ओरिजिनली e raised to power minus x था, यहाँ पर मिला है e raised to power minus x, मीन्स ये रहा f of x ही 0 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी के लिए, इस इंटरवल के लिए, ठीक है। माइनस इंफिनिटी टू 0 के लिए ओरिजिनली ये था e raised to power x, यहाँ पर भी e raised to power x ही रहा है, तो ये भी रहेगा f of x फॉर माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन 0, मीन्स इस इंटरवल के लिए, ठीक है। सो इन ऑल दोनों भी इनइक्वलिटी के लिए ये रहता है f of x। वी हैव स्टार्टेड विथ f of minus x, वी अराइव्ड एट दिस पार्ट, सो f of x which is equal to e raised to power minus mod x is an even function। अब चेक करो आपका स्टेटमेंट, आपको पूछा गया है फोरियर ट्रांसफॉर्म, ना कि fc ऑफ लैम्डा ना ही fs ऑफ लैम्डा। तो अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको दिया है तो इंटरवल कंसीडर करनी है माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, नॉट 0 टू इंफिनिटी। एंड अगर ये कंसीडर करके हम चलते हैं तो ये 2 आ जाएगा, अगर नहीं करके चलते हैं तो 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1, जैसे अभी आप बता रहे थे, ठीक है। ओके, सो हमने तो इवन फंक्शन है प्रूव कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं, f ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ u e raised to power minus i lambda u into du, लेकिन f of u जो है वो हमारा है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e raised to power माइनस मॉड u, इसको लिखते हैं cos of lambda u माइनस i into sin of lambda u into du। सेपरेट करो इस इंटीग्रेशन को, अभी तक हमने इवन एंड ऑड यूज नहीं किया है, आई एम जस्ट सेपरेटिंग द टर्म्स। cos of lambda u minus i into इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e raised to power minus mod u into sin of lambda u into du। अब यहाँ पर हम क्लेम करते हैं कि e raised to power minus of mod u even फंक्शन है। दिस इज even, this is even, right? This is even and this is odd. So product of even and odd क्या हो जाएगा? odd। तो इसका इंटीग्रेशन इवैल्यूएशन क्या आ जाएगा? 0। एंड इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e raised to power। अब 0 टू इंफिनिटी के लिए आपका ये इवन फंक्शन 0 टू इंफिनिटी के लिए क्या वैल्यू दे रहा है? e raised to power minus x, राइट। तो ये आपका एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर लिखना है, e raised to power minus u and cos of lambda u as it is into du। अब इसे सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफाई करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। e raised to power ax into cos of bx dx के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। e raised to power minus u, a की वैल्यू है -1, सो -1 का स्क्वायर 1 प्लस b की वैल्यू है लैम्डा, इसका स्क्वायर इंटू -1 a की वैल्यू a टाइम्स cos of lambda u प्लस, यस बेटा मैम इसका स्टैंडर्ड दिया था प्रीवियस में, 0 टू इंफिनिटी में वो a अपॉन a स्क्वायर पे b स्क्वायर आता है मैम आंसर सीधा डायरेक्टली। बिल्कुल यस, वो आप लिख सकते हो। मैं फिर से एक बार सिर्फ बता रही हूँ, वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। हमने इनिशियली ये डिस्कस किया था प्री रिक्विजिट्स के केस में, तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूट द अपर एंड लोअर लिमिट्स, तो इन्फिनिटी के लिए फर्स्ट टर्म 0 आएगी आपकी, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने पहले दिन एक्सप्लेन किया था। माइनस e raised to power 0 दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, दिस इज 0। सो हमें ये आंसर मिलता है 1 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, एंड हियर इज आवर फाइनल आंसर, दैट्स इट, 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इस वे में आता है। लेकिन इसके लिए
एक्चुअली ये प्रॉब्लम 4 ही स्टेप्स का है। ये पूरा जो मैंने स्टफ लिखा है ना यहाँ पर, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ यू नो वेरी वेल कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, आप आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप इट्स इवन फंक्शन, सेकंड स्टेप इसका फॉर्मूला, थर्ड स्टेप सिंप्लीफिकेशन, फोर्थ स्टेप इसका इवैल्यूएशन। दैट्स इट। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? ओके, यहाँ पर किसी को डाउट है कुछ? नो मैम। नो मैम। यस, ओके। सो और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं जहां पर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, बट यू नीड टू यूज द DUIS, क्योंकि इसका यूज भी आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। Either to find out the Fourier transform or to find out the inverse Fourier transform. Sometimes we need to apply the DUIS, क्योंकि functions बहुत बार थोड़े से difficult बन जाते हैं। I hope you might have started, you might have solved this problem also, क्योंकि ये भी शायद homework पे लिखा रखा है। Question number 4 we are solving. Find the Fourier transform of e raised to f of x is equal to e raised to power minus x square upon 2. ये हमें फाइंड आउट करना है। ये शायद प्रूव दैट के फॉर्म में दिया होगा वहां पर, तो लेट अस चेक आउट कि आंसर सही है या नहीं हम जो निकाल रहे हैं। नाउ टेल मी फर्स्ट थिंग, e raised to power minus x ये इवन है या ऑड है? मैम इवन फंक्शन, Neither even nor odd. Neither even nor odd. ओके, नॉर ऑड और इवन। e raised to power minus x plus x के लिए सेम रिजल्ट है। Yes, ma'am. ओके, व्हाट अबाउट e raised to power x square? and even. Even, ma'am. Even. e raised to power minus x square, Even. Even. करेक्ट? मीन्स एक्सपोनेंशियल के इंडेक्स में जो पॉजिटिव पावर्स ऑफ x होगी वो सारी इवन बन जाएगी, जो निगेटिव पावर्स है वो नाइदर ऑड नॉर इवन हो जाएगी। एम आई करेक्ट? नहीं मैम, जो ऑड पावर्स होंगे वो No, नाइदर इवन ma'am. हो Odd जाएंगे powers will be और इवन odd. पावर्स होंगे Odd, हाँ. नाइदर इवन हो जाएंगे। ऑड पावर, ओके चलो x क्यूब लिखा मैंने, तो ये इवन है या ऑड है? मैम नाइदर इवन हो जाएगा। Neither even nor odd. हाँ, ओके मैंने उल्टा बोला था क्या? फाइन फाइन, Yes, ma'am. यस, ठीक है चलेगा। तो ये तो समझ में आ रहा है हमको। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो तो स्ट्रेट वे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इवन फंक्शन है, क्योंकि x की इवन पावर है। Am I right? And though it is asked here to find out the Fourier transform, हम इसे माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी के साथ स्टार्ट कर ही सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऐसा कुछ नहीं बोला है। So we can start like this way: f of x is equal to e raised to power minus x square by 2 is an odd function on minus infinity less than x less than infinity. Therefore, f of lambda, I'm not writing fc of lambda or fs of lambda. It's integration minus infinity to infinity e raised to f of u e raised to power minus I lambda u du. So this is equal. Ma'am? Yes, beta. Ma'am, that f of x will be an even function, right? f of x, हाँ, I'm sorry. Odd Yes, है, yes. odd. हाँ, okay. Yeah, it's even function. Let me erase it. It's even function. So e raised to power minus u square by 2, and this is e raised to power minus I lambda u du. Please don't add the indices here. हमें ये indices add नहीं करने हैं. It's e raised to power minus infinity to infinity, e raised to power minus u square. ये हमारा even function है. This can be written as cos of lambda u minus I into sin of lambda u, जैसे हमने ऊपर किया था. Now separate the terms. This is integration minus infinity to infinity e raised to power minus u square by 2 cos of lambda u du, right? Minus I into integration minus infinity to infinity e raised to power minus u square by 2 sin of lambda u du. But this is equal to 0, क्योंकि ये even function है, this is odd function, product will be odd, and odd integrand के लिए integration minus infinity to infinity 0 आ जाएगा.
So I'll just discard this, and now I have to focus on this is f of lambda is equal to इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमारा इवन है, ये भी इवन है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to power minus u square by 2 into cos of lambda u into du. Yes, and I'll put down this as star. Now let me know which formula we can use here, क्योंकि ये आपका इंटीग्रेंड जो है e raised to power ax into cos of lambda x dx के फॉर्म में नहीं है, x स्क्वायर की टर्म यहाँ पर ऐड हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉरी मैम अगर हम ये सम करेंगे मैम इंस्टेड ऑफ राइटिंग cos lambda u we can write e to the power I lambda u, फिर प्रोसीड कर सकते हैं ना मैम, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फिर आ सकते हैं ना आंसर। हाँ कर सकते हैं। इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एट इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। सो वैल्यू एट इंफिनिटी व्हाट विल डू? मैम मैंने जो किया था ना मैम उसमें क्योंकि ये इवन फंक्शन है मैंने सिर्फ कोसाइन टर्म निकाला, और फिर क्योंकि अल्टीमेटली कोसाइन टर्म ही सोल्यूशन होगा ना मैम, तो फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल के आंसर आ गया मैम e to the power minus lambda square by 2, वो जो है ना मैम √2 by pi इंटीग्रल 0 to infinity। अच्छा, वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, एक ही मिनट यहाँ पर आता है लैम्डा की टर्म आती है, इंटीग्रेशन कैसे किया लेकिन ये क्लब करने पर? मैम मैंने कैसे किया मैम, वो जो है ना फॉर्मूला कोसाइन टर्म का √2 by pi into इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power मतलब fx e to the power I lambda u du, फिर उससे प्रोसीड किया मैम। नहीं, मुझे सेंड करो आप, एक बार मैं चेक करती हूँ, एक बार व्हाट्सएप करो। ओके मैम। यस, ओके फाइन। सो मैं इस मेथड से बताती हूँ, एंड जो भी मेथड कौन बोल रहा था ये, इज इट संजीत? यस मैम। ओके, तो संजीत का मेथड हम क्रॉस चेक करके फिर से इस पर बात करेंगे। ओके, यस यस। तो मैं सिर्फ DUIs बताने के लिए प्रॉब्लम ले रही हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो DUIs के साथ सिंप्लीफाई हो सकते हैं, बट दीज प्रॉब्लम्स आर लिटिल लेंथी। सो अगर हमारा एग्जाम पैटर्न 4 या 5 मार्क्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है तो प्रोबेबली द DUIs sum will not be asked because these sums are lengthy. I arrived at this equation 1 by using the even and odd concept. Now here onwards, because of this term we cannot solve it directly, so हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेते हैं। So on both of the sides lambda is constant under this integration, but ultimately ये इंटीग्रेशन अगर सॉल्व होता है तो हमें लैम्बडा के फॉर्म में वैल्यू मिलती है, so इसलिए हमने इस पूरे इंटीग्रेशन के इवैल्यूएशन को f of lambda कहा है। So left hand side I can differentiate with respect to lambda, so we are doing that. So this is df by d lambda is equal to twice integration 0 to infinity partial derivative with respect to lambda इसका e raised to power minus u square by 2 into cos of lambda u du के साथ। so ये हो जाएगा 2 into integration 0 to infinity, डिफरेंशिएट करते हैं, e raised to power minus u square by 2 कांस्टेंट है लैम्बडा के रिस्पेक्टिव इसलिए बाहर आ गया, cos of का डेरिवेटिव sin of lambda u into u एंड du, क्योंकि लैम्बडा के रिस्पेक्टिव आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, cos ऑफ लैम्बडा u का डेरिवेटिव है माइनस साइन आ जाएगा इनटू लैम्बडा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, तो u बचेगा, लैम्बडा का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो टर्म इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e raised to power minus u square by 2 into minus 2u right into sin of lambda u into du। कुछ याद आ रहा है यहाँ से? सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा? u square by 2 is equal to t yes, u square by 2 is equal to t, correct। so u square is equal to 2t, u is equal to √2 into √t, correct, and du is equal to √2 into 1 upon √2 into √t into dt। Am I correct? So yes, let us substitute. Yes, ma'am. Yes, possible.
या मॅम इंटिग्रेशन डायरेक्ट करताना डिफरेंशिएट करून 2u म्हणजे u u du इज मैम इक्वल टू यू dt डी होऊन यू जाईल इक्वल u टू डी du आता into है dt मैम. हां u du इज इक्वल टू dt. हा मॅम. यू डी यू मॅम इथे is तुम्ही equal to u dt. स्क्वेअर इज इक्वल टू 2t लिहिलेलं आहे ना, तिथे डायरेक्ट तुम्ही डिफरेंशिएट केलं तर येऊन जाईल. हां 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 चालेल ना, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि यूला रिप्लेस करा, नो इश्यूज ॲट ऑल. चालेल चालेल. सो नाव हिअर आय गेट दिस इज ई रेज टू पॉवर मायनस टी. Minus sign still will remain, correct? And this is sign of u we can put as 2 root 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 2 2 into t. root lambda root t lambda. root 2 into lambda root 2 into t. into t root t ma'am root t. Root t. परत रूट टी येत आहे. ओके, एकच मिनिट. इथे इव्हॅल्युएशन करायला डिफिकल्ट जाईल आपल्याला. यस मैम. एकच मिनिट. हां एकच मिनिट, ह्याला असं करूया आपण. दिस सबस्टिट्यूशन विल कंटिन्यू. ह्याचं ग्रुपिंग केलं आपण. दिस इज इंटिग्रेशन 0 to infinity. मायनस साईन बाहेरच ठेवू आपण, ठीक आहे. मायनस साईन बाहेर ठेवूया. दिस इज u इंटू ई रेज टू पॉवर u स्क्वेअर बाय 2 into sine of lambda u into du. Okay, we'll do in this way. This is equal to minus sine as it is, sine of lambda u as it is, integration of this e raised to power minus sign राहिले का आपल्या इकडे. yes हां, minus u square by 2 e raised to power f of x into f dash of x. That's right. Okay, okay. Then this is minus integration 0 to infinity. इसका डेरिवेटिव cos of lambda u with respect to u हमें करना है. So lambda आ जाएगा, करेक्ट, दैट्स राइट. एंड इसका फिर से इंटीग्रेशन आ जाएगा e raised to power minus u square by 2 e raised to power f of x into f dash of x into du. ओके, अब सही है. इसे अप्लाई करेंगे 0 to infinity और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस. नहीं ना, माइनस साइन हमें यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, -2 वगैरह. यस यस, तो माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा. दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. यस, ओके. नाउ दिस इज गोइंग टू बी e raised to power minus infinity, that is 0. साइन ऑफ इन्फिनिटी मस्ट बी फाइनाइट क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन है. तो अपर लिमिट यहाँ पर 0 आ गई, लोअर लिमिट 0 है, तो ये पहली टर्म तो पूरी 0 बन रही है. माइनस यहाँ पर मुझे मिलेगा lambda into integration 0 to infinity cos of lambda u into e raised to power minus u square upon 2 into du. Am I right? एंड कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? इक्वेशन 1 से. ओके, सो ये हमारा f ऑफ लैम्बडा है. फाइन. तो हमें क्या मिला है? दिस इज df बाय d लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू ये टर्म हमें मिली है f ऑफ लैम्बडा. सो ये लैम्बडा बाय 2 के फॉर्म में, माइनस लैम्बडा बाय 2 इंटू f. इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है. इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, दिस इज ई रेज्ड टू पावर f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x. सो ये हो जाएगा ई रेज्ड टू पावर f ऑफ x और यहाँ पर भी सेम
इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है. सो दिस इज माई v, नो दिस इज माई v एंड दिस इज माई u. तो इसका u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, एंड ये सिंप्लीफाई होके हमें मिला है f ऑफ लैम्डा. तो हमारा सिंप्लीफिकेशन आता है df by d लैम्डा अपॉन df by d लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 इंटू f. लेकिन ये तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो सेपरेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है. सो लेट अस सेपरेट द वेरिएबल्स. df by f इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू d लैम्डा अपॉन 2. ये हमें सिंप्लीफिकेशन मिलता है, राइट. सो दिस इज लॉग ऑफ f, ये f ऑफ लैम्डा है, माइनस 1/2 इंटू लैम्डा स्क्वायर बाय 2 लैम्डा का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. हमारे सो ये हो गया f ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a, या इसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं e रेस टू ये वाली टर्म. तो ये आ जाएगा e रेस टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस e रेस टू पावर a, दैट इज इसे लिख सकते हैं b. प्रोडक्ट में आ जाएगा इनटू b. तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन. लेकिन हमें a की या इस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें f ऑफ लैम्डा चाहिए, लेकिन b की वैल्यू के चाहिए. b आर्बिट्री है, तो ये हम सही वैल्यू नहीं मान सकते हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म की. लेकिन ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? दिस इज इक्वेशन 2. तो ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इक्वेशन 1 के साथ. इक्वेशन 1 में हमें पुट अप करना है कुछ ऐसी वैल्यू लैम्डा की, सो दैट इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करके हम b की वैल्यू फाइंड आउट करें. सो मैं इक्वेशन 1 यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ. दिस इज 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos ऑफ लैम्डा u इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इंटू डी. ये हो गया आपका इक्वेशन 1. सो लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट अप करनी है, सो दैट दिस इंटीग्रेंट विल बिकम सिंपल. राइट हैंड साइड का ये इंटीग्रेशन सिंपल बनना चाहिए. सो लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये इंटीग्रेशन सिंपल बनेगा? 0 के लिए, क्योंकि 0 के लिए ये 1 बनेगा एंड मेरे पास सिर्फ इतनी टर्म रहती है. एंड ये टर्म प्रोबेबली आपको नोन है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0. ये टर्म आपको प्रोबेबली नोन है, e रेज़ टू पावर माइनस u स्क्वायर बाय u इंटू डी. अगर आपको याद आ रहा है रूट पाई बाय 2. रूट पाई बाय 2. शायद राइट डाउन डायरेक्टली. नहीं मैम, रूट 2 पाई आएगा मैम. इसका रूट 2 पाई आएगा ना मैम. e टू द पावर माइनस u स्क्वायर के लिए मैम रूट पाई बाय 2 आता है मैम. राइट. तो यहाँ पर क्या आएगा? रूट ऑफ पाई बाय 2. 2 पाई आएगा मैम. हाँ, यस रूट 2 पाई. ठीक है. तो ये हो गया इसका आवाज. क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं आपका गैमा फंक्शन. ओके, चेक इट आउट. यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं गैमा फंक्शन. तो ये आपका रूट 2 पाई आ जाएगा. यस. सो ये वैल्यू हमारी आ रही है लैम्डा पुट अप करने पर बाय इक्वेशन 1. सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ दिस इज f ऑफ 0. अब सेम f ऑफ 0 हम इक्वेशन 2 का भी यूज करके फाइंड आउट करते हैं. सो ये मिलेगा हमें e रेज़ टू पावर 0 इंटू b. दैट मीन्स सिर्फ b इज इक्वल टू f ऑफ 0. तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें? रूट ऑफ 2 पाई. हमारे इसे और इसे कंपेयर करके, थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करके. सो ये b की वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं इक्वेशन 1 में. सो हमें मिलेगा f ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू रूट 2 पाई इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4. एम आई राइट? तो ये हो गया आपका इवैल्यूएशन. एंड हमें दिया क्या था मैम? आंसर अलग है मैम. आंसर है e टू द पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 मैम. तो वहां पर शायद फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोला होगा आपको फाइंड आउट करने के लिए. नहीं मैम, सिंपली फोरियर ट्रांसफॉर्म बोला है मैम. क्योंकि मैम यहाँ पे सिर्फ फोरियर कोसाइन ही आ सकता है मैम. फोरियर साइन तो आ नहीं सकता ना मैम, क्योंकि फोरियर साइन पॉसिबल नहीं है. और आंसर भी मैम ये नहीं है. ऐसा आंसर है ना मैम e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए है. और वो जो इंटीग्रल था ना मैम e टू द पावर माइनस u स्क्वायर बाय 2, उसका आंसर गैमा ऑफ हाफ होता है मैम. गैमा ऑफ हाफ.
मैंने चेक किया, वो √2 पाई नहीं आता मैम, √पाई आता है मैम बस। वो e⁻⁻u² / 2 ना मैम, वो बस √पाई आता है मैम। तो वो आंसर 2√पाई आ जाएगा क्योंकि वो गैमा ऑफ हाफ आता है। गलत हो नहीं गया। नहीं बच्चों को एक मिनट चेक करते हैं हमने क्या पुटअप किया है यहाँ पर। दिस इज u²/2 अलग कलर के साथ ही u²/2 को हमने पुटअप किया तो ये u हो गया 2 √2t एंड du हो गया हमारा 1/√t इंटू डी टी। सो ये सब्सटीट्यूट करने पर हमें मिलता है दिस इज इंटीग्रेशन, लिमिट्स तो चेंज नहीं होती, e⁻t माइनस टी, डी यू क्या हो जाएगा t⁻⁻², सो ये हाफ -1 इंटू डी टी। तो हमें क्या मिलता है ये दिस इज गैमा फंक्शन ऑफ हाफ ओनली, सो √पाई ऐसे बोल रहे हो आप? मैम 1/√2t आता है मैम, √t नहीं आता मैम डिफरेंशिएशन, √2t आता है मैम क्योंकि हाँ ना, वो रूट। हाँ हाँ ना, नहीं 1/2 ट्वाइस ऑफ √t, आई एम सॉरी, हाँ हाँ हाँ, तो ये √2 यहाँ पर आ जाएगा, आई एम सॉरी। हाँ यस मैम, तो वो गैमा हाफ बच जाता है मैम, वन ओके, अपन √2 गैमा हाफ। 1/√2, तो ये √2 इंटू 2 सही तो आया है हमारा। हाँ यस मैम, अब सही है मैम। हाँ ये सही है ना। हाँ ओके, तो वहां पर शायद कोसाइन ट्रांसफॉर्म दिया था या साइन ट्रांसफॉर्म दिया था, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आता रहा। Ma'am, हम्म। ma'am, can you just scroll down? हमने साइन की मिस्टेक नहीं करी है Can ना। you explain what did you do here, like in first step? ये वाला, हाँ हाँ यस यस, दिस इज योर e⁻f(x) इंटू इसका डेरिवेटिव f'(x) साथ में है, e⁻⁻u²/2 इसका डेरिवेटिव हमने लिया ना, तो ये हो जाएगा e⁻⁻u²/2 इंटू -1/2 इंटू इसका डेरिवेटिव u² का 2u, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो -u इंटू e⁻⁻u²/2, तो ये है e⁻f(x) एंड इसके साथ है इसके प्रोडक्ट में इसका डेरिवेटिव, सो इंटीग्रेशन e⁻f(x) इंटू f'(x) dx। अगर ये इंटीग्रेशन हमारे पास है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e⁻f(x). तो ये स्टैंडर्ड कंपोजिशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। सो दिस इज योर v और ये है आपका u। तो मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया है। सो u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन जो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूला के साथ जस्टिफाई किया है, माइनस u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। अब ये पूरी टर्म तो जीरो आएगी जो मैंने यहाँ पर लिखी है, लैम्डा बीइंग अ कांस्टेंट मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिया, दिस इंटीग्रेशन नाउ रिमेन्स e⁻⁻u²/2 इंटू कॉस ऑफ लैम्डा u। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हमारा है f ऑफ लैम्डा जो इक्वेशन 1 के साथ हमने लिखा था एंड उसके साथ फर्दर कंटिन्यू किया हमने। ये मेथड लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी जा रही है, राइट? Sanjit, I guess you told me that this method is you have solved in different way. Please WhatsApp करो मुझे, चेक करते कि वो मेथड अगर शॉर्ट लगी तो वो यूज करते। I'll explain this problem once again then. एंड मुझे ये अच्छे से लिख के भेजना पड़ेगा, सॉरी, बाद में देना चलेगा ना, वो हाँ प्रॉपर वे में लिख के भेजना पड़ेगा। यस नो इश्यूज एट ऑल। आपने क्या यूज किया वो भी बता, आप समझ में नहीं आ रहा है मुझे आप क्या बता रहे हो, तो एक बार भेजो, विल चेक इट आउट। एंड मुझे इस कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा ये लग रहा है, अगर ये इवन फंक्शन है एंड हम क्या होता है इसे 2/π वाली टर्म आती है, तो अगर मैंने स्प्लिट भी किया इस टर्म को तो 2/√π वाली टर्म आती है, दिस इज √2 इंटू पाई e⁻⁻λ²/4। फिर भी हम यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to ∞ के साथ चल रहे हैं, इसलिए ये आंसर में डिफरेंस है। e⁻λ²/2 की टर्म क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ चल रहे हैं। अगर मुझे कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोला होता तो शायद ये टर्म आ जाती। संजीत, जैसे आप बोल रहे हो कि ये प्रॉब्लम में दे के रखा है।
यस मैम। ये पूरा इस वजह से डिफरेंस आता है कांस्टेंट का एंड इस वाले टर्म का, क्योंकि मगर अगर मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म बोला है तो कंपलसरी है कि इंटरवल आपको ये चूज करनी है, एंड लेटर ऑन यू कैन राइट डाउन दिस एज इंटीग्रेशन 0 to infinity if it is cosine even function and odd function whatever in that sense, ठीक है। एंड अगर आपको ऑलरेडी दिया है कि आपको एफ सी ऑफ लैम्डा यूज करना है तो आपका इंटीग्रेशन 0 to infinity के साथ स्टार्ट कर रहा है, तो ये 2 जो है ना वो आ ही नहीं रहा है कैलकुलेशन में। इस 2 की वजह से हमारा ये वेरिएशन आ सकता है प्रॉब्लम में। सो प्रॉब्लम इज नॉट इनकरेक्ट, आपका ये भी आंसर आ रहा है तो ये इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन इसका फॉर्म डिफरेंट है। सो जैसे आप इनिशिएट कर रहे हो जो आपको दिया है उस पर बेस्ड करता है कि ये आंसर आपका क्या आएगा। सो इस 2 की वजह से हमें बहुत बार प्रॉब्लम जाने वाली है, प्लीज ये याद रखना, ठीक है। वैसे भी ये पूरा प्रॉब्लम मैंने DOS रूल कैसे यूज करते हैं उसके लिए एक्सप्लेन किया। इतना लंबा प्रॉब्लम आपको थ्योरी में अगर 4-5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो शायद नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, बिकॉज इन रियल लाइफ एप्लीकेशन जब भी आप सिग्नल्स एंड सिस्टम के बारे में बात करोगे, जब भी आपको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है, इन दैट केस यू मस्ट नो द रियल वैल्यूड फंक्शंस हाउ टू डील विथ। तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा सिंपल फंक्शन नहीं आएंगे। रियल लाइफ प्रॉब्लम में हमेशा फंक्शंस की जो लेवल होती है वो कॉम्प्लेक्स ही होती है, कभी भी लीनियर फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशियल इक्वेशंस जो मिलते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस के वो नॉन लीनियर कैटेगरी के मिलते हैं, जिसे सिंप्लीफाई करना बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं होता है। ऑलराइट, सो वी मस्ट नो एटलीस्ट द बेस ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक कि हमें कैसे अप्लाई करना है इस चीज के लिए, ठीक है। इस प्रॉब्लम पर फिर से एक बार डिस्कस करते हैं एंड विल प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, जहां पर हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ओके, विल टेक वन प्रॉब्लम फॉर द पीपीटी। आई विल गो टू द थर्ड टाइप। बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हमारे इसमें है, सो प्लीज गो थ्रू दैट। हाँ, यही वाला प्रॉब्लम था ना, क्या दिया है हमने, फोरियर ट्रांसफॉर्म ही दिया है e raised power minus lambda square by 2। I'll get back to this problem once again क्योंकि ये तो नहीं आ रहा है हमारा। एंड अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के साथ स्टार्ट करते तो ये प्रॉब्लम आंसर आ रहा है ये। आई विल एटलीस्ट सेंड यू आंसर्स फॉर बोथ वंस अगेन। ओके, कम टू द टाइप 3। यहाँ पर आपको फिर से DOS यूज करने की जरूरत पड़ेगी एंड ये रिजल्ट डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो लेट अस गेट बैक टू प्रॉब्लम नंबर 1। यहाँ पर भी आपको DOS यूज करना है क्योंकि डिनोमिनेटर लैम्डा की वजह से fs ऑफ लैम्डा का जब डायरेक्ट यूज करते हैं हम f ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए तो हमारा फंक्शन डिफिकल्ट लेवल पर आ सकता है। आई एम सॉरी, प्लीज वेट अ मिनट। ये प्रॉब्लम हम जर्नल पर सॉल्व करते हैं। I'll write down this problem. टाइप 3 क्वेश्चन में यहां पर लिख रही हूं, फाइंड इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x। किसका फाइंड आउट करना है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म fs ऑफ लैम्डा का। वो ऑलरेडी देके रखा है आपको, e raised to power minus a lambda upon lambda, ठीक है। तो अब आपको रिवर्स दिया है, fs ऑफ लैम्डा देके रखा है, f ऑफ x फाइंड आउट करना है। अब अगर आपके पास इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म है तो इसके करस्पॉन्डिंग इनवर्स सॉरी What I was about to say, हाँ, अगर आपके पास fs ऑफ लैम्डा साइन ट्रांसफॉर्म है तो उसके करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो है वो साइन ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में ही मिलेगा। तो f ऑफ x का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, अगर आपके पास इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी देके रखा है तो इट विल बी 2/π इंटीग्रेशन 0 to infinity। अब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं आएगा क्योंकि आपको पूछा है साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म पूछा है एंड साइन ट्रांसफॉर्म देख के रखा है। सो ये हो जाएगा fs ऑफ लैम्डा इंटू साइन ऑफ लैम्डा x इंटू डी लैम्डा।
अब ये पूरा इंटीग्रेशन हम लैम्डा के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट करेंगे एंड x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली ये इंटीग्रेशन सॉल्व होने पर बचेगा क्या, x की टर्म्स बचेगी जो कि हमारा इनवर्स ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट करेगी। सो लेट अस पुट अप जस्ट fs of lambda and evaluate this. So this is 2 upon pi integration 0 to infinity e raised to power minus a lambda upon lambda into sin of lambda x into d lambda. अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये भी कांस्टेंट है तो इसके रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या? नो, वी आर हैविंग पैरामीटर एज x क्योंकि राइट हैंड साइड एक्सपेक्टेड है कि x का फंक्शन मिले हमें। बट टू इवैल्यूएट दिस, अगर हमारे पास ये लैम्डा नहीं होता तो प्रॉब्लम वुड हैव बिकम वेरी सिंपल। लेकिन इस प्रॉब्लम की, इस लैम्डा की वजह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो डिफिकल्ट लेवल पर जाता है and we need to use DYS here. So I'll put down this as equation 1, इसे मैं f of x करती हूँ and now using DYS for 1 हमें मिलता है df by dx, मुझे x के रिस्पेक्टिव ही इंटीग्रेट करना है। 2 upon pi is a constant term, डेरिवेटिव मैं इंटीग्रेशन के अंदर लेती हूँ। किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको? आपके इंटीग्रेंड का, साइन ऑफ लैम्डा x इंटू डी लैम्डा। लेकिन इस पूरे इंटीग्रेंड के लिए हमारे पास x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करने पर साइन को सिर्फ फर्क पड़ता है, बाकी टर्म तो कांस्टेंट ट्रीट की जाएगी। सो दिस इज 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा a अपॉन लैम्डा, साइन का डेरिवेटिव है cos ऑफ लैम्डा x इंटू x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होगा? लैम्डा इंटू डी लैम्डा। अब यहाँ पर देख सकते हो ये डिनोमिनेटर लैम्डा DYS की वजह से कैंसिल होके हमारा इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म पर कन्वर्ट करता है, राइट? यस, सो दिस इज 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस a लैम्डा cos ऑफ लैम्डा x इंटू डी लैम्डा। अब आपका फॉर्मूला स्टैंडर्ड वे में है e रेज़ टू पावर ax इंटू cos ऑफ dx। अब यहाँ पर आपको सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। हियर इट इज माइनस a एंड हियर इट इज x। So apply that formula. This is 2 upon pi into e raised to power minus a lambda upon minus a का square, so it's a square plus b है x का square into minus a cos of lambda x plus lambda into sin of lambda x वैरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब इस टाइप वाले सिंप्लीफिकेशन में अपर लिमिट हमें हमेशा 0 मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव एक्सपोनेंशियल रेज टू माइनस ऑफ टर्म। एंड यहाँ पर cos ऑफ इन्फिनिटी sin ऑफ इन्फिनिटी तो फाइनाइट टर्म आनी चाहिए क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शंस है। सो फर्स्ट टर्म इज 0 माइनस सेकंड टर्म e रेज़ टू पावर 0 इज 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर into this is minus a into cos of 0 is 1 plus lambda into sin of 0 is 0. So ये हो गया हमारा simplification. This is equal to 2 upon pi minus minus plus a upon a square plus x square. Am I right? तो हमें यहाँ पर डेरिवेटिव क्या मिला? df by dx is equal to 2 upon pi a upon a square plus x square. But this is again a variable separable form. And आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर बना है वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सेपरेट आउट करके वहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो हमें सिंप्लीफिकेशन इजीली मिल जाएगा, हमारे। सो यहाँ पर मैं पुटअप करती हूँ df, f की और कोई टर्म नहीं है, 2 अपॉन पाई एज ए कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx। सेपरेट कर दिया वेरिएबल्स एंड नाउ इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा? दिस इज f ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई कांस्टेंट टर्म, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 1 log of a square plus x square। log नहीं है, सॉरी log नहीं है,
लॉग की टर्म कब आती है? जब स्क्वायर रूट है तो 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन tan 1 inverse upon a tan inverse x upon a करेक्ट. by सो tan inverse x by यस, सो 1/a एंड यहाँ पर ऑलरेडी a है तो ये कैंसिल हो जाएगा. tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैपिटल है. सो ये हमें मिलता है 2/π tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस a. तो ये है आपका f ऑफ x. लेकिन f ऑफ x हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ नहीं चाहिए तो हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज योर इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 हमने दिया है क्या कहीं पर? हाँ, ये है हमारा इक्वेशन 1. सो मैं इक्वेशन 1 फिर से लिखती हूँ. f ऑफ x जो इंटीग्रेशन फॉर्म में है 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी क्या था वो e⁻a लैम्डा अपॉन लैम्डा इनटू साइन ऑफ लैम्डा x इनटू d लैम्डा. यस, अब मुझे x की ऐसी वैल्यू पुट अप करनी है सो दैट आइदर ऑफ द इक्वेशन 1 और 2 इजीली सॉल्व हो जाए. पुट x इज इक्वल टू, ये हमारी क्रूशियल स्टेप होगी. अगर x की वैल्यू, हाँ, x की वैल्यू आपको 0 ही लेनी पड़ेगी. ये हमें कैसे समझ में आ जाएगा? क्योंकि जब तक आप ये वैल्यू 0 नहीं होगे तब तक ये डिनोमिनेटर वाला लैम्डा हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अगर आप x इज इक्वल टू 1 लेते हो, पाई लेते हो, कुछ भी लेते हो तो डिनोमिनेटर का लैम्डा तो हटेगा ही नहीं एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम एवरी टाइम. एंड जब x is equal to 0 लेते हो the entire integrand becomes 0 and hence f of x can be easily evaluated. So मुझे x equal to 0 put up करना चाहिए तो ये हो जाएगा f of 0 by 1 is equal to 0 and by 2 हमें क्या मिलता है? ये f of 0 is equal to यहाँ पर 0. what is tan inverse of 0? 0 plus a. So this entire discussion implies a is equal to 0. So it is going to give us the value of integration constant. Hence, by 2, we get our f of x inverse Fourier transform as 2/π tan inverse of x upon a, right? या फिर इसे आप √2/π tan inverse of x by a भी लिख सकते हो if we wish to split the constant half with f of x and half with f of lambda. लेकिन f ऑफ लैम्बडा के साथ हमें ये कांस्टेंट नहीं दिया था तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हमने f ऑफ x के साथ रख लिया. तो ये है हमारा फाइनल आंसर. गॉट द प्रॉब्लम? ओके, एनी डाउट्स एनीवन हियर? ये फिर से एक प्रॉब्लम है जहां पर हम DOIS यूज कर रहे हैं एंड वी आर फाइंडिंग आउट अवर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो एक प्रॉब्लम DOIS के साथ हमने लिया जो यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था. दूसरा प्रॉब्लम हमने लिया जहां पर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था. ठीक है, वैसे अगर DOIS अप्लाई नहीं करना है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना दोनों भी क्वाइट इजी है. लेट अस चेक आउट वन मोर प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप. ये देखो, ये सेम आंसर मिला है हमें. ठीक है, यूजिंग इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको f of x फाइंड आउट करना है. इसका यहाँ पर भी हमें DOIS यूज करना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट. तो ये प्रॉब्लम आप चेक कर लो एक बार. हाँ, ये प्रॉब्लम देखते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन. नाउ सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? सॉल्व करो इंटीग्रल इक्वेशन मीन्स व्हाट? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना. दिया क्या है आपको एंटायरली? क्या है ये? Can anybody tell me what is this given integration is? Fourier integral representation. Is it Fourier integral representation? Fourier transform. ये Fourier transform है? Ma'am, it's inverse Fourier transform. ओके, मैं और एक प्रॉब्लम लिखती हूँ यहाँ पर. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन वन प्रॉब्लम. दिस इज क्वेश्चन
वन मोर क्वेश्चन, ठीक है. यूजिंग Fourier integral representation, show that integration 0 to infinity lambda cube sine of lambda x upon lambda raised to 4 plus 4 into t lambda is equal to pi by 2 e raised to power minus x cos of x. Yes, इन दोनों में डिफरेंस बताओ मुझे. वन ऑफ योर आंसर इज करेक्ट. जो अभी 3 आंसर्स हमें मिले, वन ऑफ आंसर इज करेक्ट. अब इसका डिफरेंस बताओ मुझे. आपको यहाँ पर क्या करना है, यूजिंग फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन शो करना है क्या ये x का जो फंक्शन है वो इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन है. सो f ऑफ x इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन आता है, ये प्रूव करना है. दैट मीन्स व्हाट, दिस इज गिवन एंड ये क्या करना है, ये प्रूव करना है. राइट, एम आई क्लियर? तो करना क्या है यहाँ पर, अगर f ऑफ x गिवन है और ये प्रूव करना है तो करना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रूव करने के लिए आपको f ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करके रिप्लेस करना है. सो ये है आपका f ऑफ लैम्डा. कम टू दिस क्वेश्चन, सॉल्व करना है. क्या सॉल्व करना है, इंटीग्रल इक्वेशन. सो ये आपका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ये इंटीग्रेशन भले ही आपको दिया है लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, लैम्डा के फॉर्म में है. नाउ दिस इज स्प्लिटेड इंटरवल, किसके लिए, x के लिए नहीं है, लैम्डा के लिए है. दैट मीन्स दिस एंटायर टर्म इज f ऑफ लैम्डा. ये f ऑफ लैम्डा है, तो आपको f ऑफ लैम्डा दे के रखा है एंड इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करना है. मीन्स व्हाट, आपको इसका यूज करके f ऑफ x फाइंड आउट करना है. सो फाइंड f ऑफ x इन दिस केस. ये इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करना है जो कि लैम्डा के फॉर्म में है. मीन्स f ऑफ x फाइंड आउट करना है. मीन्स आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. प्लीज ट्राई टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस. ऑलराइट, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x. ये दे के रखा है हमने यहाँ पे. ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x fs ऑफ लैम्डा दे के रखा है. तो f ऑफ x लिखते वक्त वो वाला सेट ऑफ फॉर्मूला इंटीग्रेशन आपको लिखना है. 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी fs ऑफ लैम्डा साइन ऑफ लैम्डा x इनटू d लैम्डा. तो पुट अप करो यहाँ पर. fs ऑफ लैम्डा है क्या, ये है 0 टू 1 के लिए 1 माइनस लैम्डा एंड 1 से लेके इंफिनिटी तक इट्स 0. सो आपका इंटीग्रेशन जो है वो ऐसे कन्वर्ट होगा. दिस इज 2 अपॉन this is equal to 2 upon lambda into integration 0 to 1 plus integration 1 to infinity. तो ये तो 0 है, राइट. तो इवेल्युएट करना है सिर्फ इसे 1 माइनस लैम्डा साइन ऑफ लैम्डा x इंटू टी लैम्डा, जो कि यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट स्टेप में. सो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई दिस. दिस इज 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस कॉस ऑफ लैम्डा x अपॉन x. अब आप इंटीग्रेशन जो कर रहे हो ना वो विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा कर रहे हो, ये याद रखना. तो x आपका कांस्टेंट है. सो माइनस 1 माइनस लैम्डा कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ लैम्डा x अपॉन x, लोअर लिमिट इंटीग्रेशन का माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव -1, इसका इंटीग्रेशन कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ लैम्डा x अपॉन x और एक बार इंटीग्रेशन माइनस साइन लैम्डा x अपॉन x स्क्वायर. सो ये सारे साइन के साथ सिंप्लीफाई करो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट अप करके. सो अपर लिमिट पुट अप करने पर दिस इज 1 माइनस 1 0, यहाँ पर 1 पुट अप किया तो माइनस 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 3 बार माइनस है तो माइनस साइन ऑफ लैम्डा अपॉन साइन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर. लैम्डा की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं. सो माइनस साइन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर. अपर लिमिट का हो गया, लोअर लिमिट का 0 पुट अप करो. कहाँ पर, x की जगह पर या लैम्डा की जगह पर, कहाँ पर पुटअप करना है. आप इंटीग्रेट कर रहे हो लैम्डा के रिस्पेक्टिव, तो अपर एंड लोअर लिमिट किसके लिए पुटअप करनी है, लैम्डा के लिए, x के लिए नहीं. सो 1 माइनस लैम्डा अपर लिमिट के साथ 0 आ गया और इस टर्म की वजह से फर्स्ट टर्म आपकी 0 बन रही है. ठीक है, अपर लिमिट के साथ यहाँ पर
लैम्डा की वैल्यू हम 1 पुट अप कर रहे हैं, सो ये आ जाएगा माइनस कॉस साइन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड ये दोनों माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएंगे। तो ये टर्म हमने लिखी अपर लिमिट के साथ, लोअर लिमिट के साथ कहाँ पर पुट अप करना है, 0 लैम्डा की जगह पर 1 माइनस 0 1 कॉस ऑफ 0 माइनस 1 अपॉन x एज इट इज, सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया लोअर लिमिट का साइन माइनस साइन मिला के, ठीक है। 0 यहाँ पर भी पुटअप करो, साइन ऑफ 0 0 आ जाएगा, सो लोअर लिमिट की सेकंड टर्म 0 बन गई। तो हमें मिली लोअर लिमिट से एक ही टर्म 1 अपॉन एक्स। सो अल्टीमेटली पूरा सिंप्लीफिकेशन करने पर मुझे x की टर्म्स मिलती है जो कि है f ऑफ x, हमारा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेके, तो फाइनल f ऑफ x मिलता है 2 अपॉन पाई x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। ऑलराइट, ओके, यहाँ पर किसी को डाउट है? अगर आपको DOIS यूज नहीं करना है तो प्रॉब्लम प्रीटी सिंपल है एंड छोटे भी है। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है? सी एवरी नाउ एंड देन यू नीड टू डू द प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस करते वक्त हर एक प्रॉब्लम में जो कंटेक्स्ट है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया वो समझने की कोशिश करें, देन गो फॉर द सॉल्यूशन। Besides use of DOIS, no problem is much lengthy in Fourier transform. And अगर आपको इसका क्रक्स समझ में आ गया है तो ये यूनिट भी बहुत easy है। So don't take much attention of Fourier transform also, but yes, definitely have some practice so that you will become confident to apply the formula for each of the problem. All right? Okay, किसी को डाउट है यहाँ पर? कुछ और प्रॉब्लम्स हैं e raised to power माइनस लैम्डा के साथ, देन ये वाला स्प्लिट इंटरवल फॉर्म वंस अगेन इंटरवल डिफरेंट है, एंड आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ही फाइंड आउट करना है थर्ड प्रॉब्लम की तरह, लेकिन कॉस के लिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यहाँ पर देके रखा है, ठीक है। ओके, सो फ्यू मोर प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर इन पीपीटी, ट्राई टू सॉल्व दैट। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लेके इस यूनिट के हम इस यूनिट को कंक्लूड करेंगे, एंड विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूनिट व्हिच इज Z ट्रांसफॉर्म। ऑलराइट, ओके, सो आई विल स्टॉप लिटिल अर्लियर टुडे। डू यू हैव एनी डाउट्स? एल्स वी कैन स्टॉप। एनी? नो मैम। यस, प्लीज टेल द डाउट। कोणाला डाउट होता? पूर्णेश का? मैम नो बोलो नहीं। अच्छा, ओके, डाउट नहीं है, फाइन फाइन, ठीक है। ओके, लेट मी टेक योर अटेंडेंस एंड विल स्टॉप। 1 2 3 4 नहीं है आज परत। रोल नंबर 2 त्रिंबक, यू वर नॉट देयर यस्टरडे। यस मैम। काल का नाही नव्हतास बेटा तू? मॅम मी काल वॅक्सिन घेतली मॅम. ओके, टू नॉट 4 205 ऑल्सो। वैष्णवी, काल नव्हतीच बेटा तू। फाइव सिक्स 7 8 9 10 11 12 13 absent, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 228 absent, 29 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 240 absent, 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 52 absent, 3 4 5 6 7 8 58 absent, 9 60 61 2 3 4 5 65 absent, 66 7 8 9 10 71 72. Okay, I repeat the option number 4 13 28 40 52